Hello everyone, welcome to my new video. And the name of this book is Then She Was Gone. Chali gayi wo. Anyways, this book is by Lisa Joel, and I've already read a book about by her named The Family Upstairs, and I really loved that book because that book was something. Okay, I'll tell you about this book, Then She Was Gone, and I'll try to narrate it in such a way like the author did it. Alright. सो क्या होता है कि देन शी वॉज गॉन एक फैमिली होती है 5 जनों की, मम्मी पापा एक बेटा, बड़ा बेटा एंड 2 बेटियाँ. ऑलराइट. तो उसमें से जो यंगर डॉटर होती है, यंगेस्ट डॉटर, वो सबकी ऐसे फेवरेट होती है काइंड ऑफ. तो क्या होता है कि वन डे शी जस्ट disappeared. She was a very good child, good at studies, good at everything. She had a good boyfriend, loving family. She could afford things and all. She was very good at studies as well. Everything was perfect. She was just bad at maths. Okay, so she wanted a tutor for mathematics and she got a tutor for it, and we'll come to the story later. So वो एक दिन डिसअपियर हो जाती है. उसकी मम्मी से बहुत ढूंढती, नहीं मिलती है, कुछ भी नहीं होता. 10 साल बाद एक बैग मिलता है और उस बैग में उसके सामान मिलते हैं. और वो सामान कहाँ से आए, कैसे आए, उसके बैग 10 साल बाद कैसे मिले. और 10 साल बाद उसकी बॉडी भी मिलती है, बट बॉडी टुकड़ों में मिलती है. उसके बोन्स मिलते हैं जो कि कुत्तों ने उसकी स्किन चबा गए होते हैं, ख़त्म कर गए होते हैं. कुल मिला के शी वॉज डेड. फाइनली हर मदर रियलाइज दैट फाइनली हर daughter is dead and now she will never return back, and that's when she was able to process it little bit or move on from that. Otherwise she was just as a thinking that my child will come back, she will always come back, but now she is in peace that she will never come back. I mean, it's not a bad thing if you think about it, because now she knows, she's certain about it, that she will never come back. अब इन 10 सालों के बीच में हुआ क्या? आई वाज सेइंग कि क्या हुआ कि इन 10 सालों में उसको, शी वॉज वेरी गुड एट स्टडीज, राइट, बट मैथ्स में उतनी अच्छी नहीं थी. तो शी नीडेड अ ट्यूटर, इवन दो हर मदर डिनाइड इट दैट वी आर मिडिल क्लास फैमिली, ऐसा नॉट सो रिच एंड नॉट सो पुअर, सो वी कैन नॉट अफोर्ड अ ट्यूटर राइट नाउ. बट शी वॉज लाइक वेरी स्टबर्न एंड शी इफ शी वांटेड समथिंग she would get it. So she got a tutor, okay, but that tutor was fucking creepy. Of course, this is where the story takes twist and all. So the tutor, she started tutoring her maths. Okay, she in the beginning she was nice, I mean a little bit creepy but still nice. And she used to, then gradually she started bringing gifts for her, for the daughter. Okay, she started giving her gifts, she started giving her compliments that you are my best student, you are the goodest student ever I've taught, or something like that. And then suddenly she started talking about her crisis, which she didn't like, because she didn't want to talk about, the daughter didn't want to talk about, the child didn't want to talk about her teacher's crisis, because of course she doesn't, why should the teacher tell the crisis about her life to the student, right? So she was like, man, I don't want to study from her anymore, and she's getting creepy, and I'm getting better at my studies as well, and I don't need a teacher or anything, I'm okay without a teacher now, I can do well, and her exams were like next week only. Okay, so she decided that to fire that teacher, and they fired. But उसकी वजह से टीचर के अंदर थोड़ा सा ईगो आ गया कि भाई मुझे फायर कर दिया. शी फेल्ट सो बैड, शी फेल्ट सो लोनली when she got fired. she felt like it was the end of the world for her, but no. उसके बाद क्या हुआ, एक दिन टीचर, एक वीक नहीं था एग्जाम का, आई थिंक एक महीना था, एंड शी वॉज प्रिपेयरिंग सो हार्ड, शी वॉज डूइंग इट सो वेल, द डॉटर. ओके, सो द ट्यूटर स्टार्टेड स्टॉकिंग हर, उसको हमेशा स्टॉक करती थी, इवन दो शी वॉज बिजी विद हर लाइफ. दैट पार्ट आई कम लेटर. ओके, इवन दो शी वॉज बिजी विद हर लाइफ, बट शी स्टार्टेड स्टॉकिंग हर so strongly ऐसा. and then one day she approached and she told कि oh hi, nice to meet you, मतलब ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे कोइंसिडेंटली मिल गए एंड ऑल. एंड द स्टूडेंट वॉज ऑब्वियसली नाइस अबाउट इट. So she was like, oh, I've got some papers which you practice papers, you can practice with them and you will score good marks. She was bribing the student. Because of that motivation, she wanted to study well, so she could, so that's why she wanted practice papers. And she was like, okay, sure, you can give me those practice papers. And she was like, oh, okay. The tutor was like, I'll drop them to your home or something. And she was like, okay, cool. Then she said,
तुम मेरे घर ही आ जाओ ना, मैं वहाँ पे दे दूँगी, इट विल जस्ट टेक 2 मिनट्स। एंड द स्टूडेंट थॉट कि मुझे नहीं जाना चाहिए, मुझे नहीं जाना चाहिए, यहाँ पे आस-पास कोई है भी नहीं, मुझे कोई देख भी नहीं रहा इसके घर जाते हुए, एंड आई शुड डेफिनिटली नॉट गो देयर, बट स्टिल शी डिड वेंट देयर, शी डिड गो देयर। वो वहाँ जाती है उसके घर और वो अभी भी घबरा रही है कि यार मुझे नहीं जाना चाहिए, कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। फिर ट्यूटर आस्क्ड कि डू यू वांट टू ड्रिंक समथिंग, सो शी डिनाइड, सो शी वाज एंड द ट्यूटर वाज लाइक ओह कम ऑन ड्रिंक समथिंग और समथिंग, सो शी सेड ओके ऑरेंज जूस दे दो चलेगा, नहीं ऑरेंज जूस नहीं था, कुछ और था। फिर द ट्यूटर ब्रॉट दैट थिंग और उसमें कुछ मिलाया था उसने, सम स्लीपिंग ड्रग काइंड ऑफ थिंग मिला दिया और उसको पिला दिया और वो पी गई और फिर वो सो गई। अब ट्यूटर का क्या मोटिव था ये करने का, नाउ आई टेल यू दिस पार्ट ऑफ द स्टोरी। शी ग्रेजुएटेड फ्रॉम अ वेरी गुड कॉलेज, शी वॉज अ वेरी गुड स्टूडेंट, बट स्टिल उसका कुछ नहीं हुआ। शी वॉज अ वर्जिन एट द एज ऑफ 41 okay, and then 41 की एज के अराउंड ही, 40 की एज के अराउंड ही शी मेट अ गाय एंड एक्चुअली शी वॉज टॉकिंग हिम। तो जो लड़का था ही वॉज एक्चुअली a writer, an author of a math book or something. He was also a mathematician. Okay, so she met a guy stalk करते करते and she was not very good looking. And वो लड़का भी पता नहीं है ना उसको इतना पसंद नहीं करता था. He just had her for sex only, and the girl knew that we are here only for sex. The boy was very nice though, ठीक है. एंड देन उसकी एक बेटी थी ऑलरेडी, लेकिन वो बेटी बड़ी बेटी थी 29 ईयर्स ओल्ड की, तो वो शी वॉज नॉट दैट मच अटैच्ड विद हिम. Oh my god. And what happened was कि उसके वो उस लड़के से मिली and she was like very much attracted to him and she wanted to have her baby so that he would give her attention. This is how she wanted to capture that man so that she would have that man's attention and she could keep him forever. तो पहली बार वो pregnant हुई but वो बेबी अबॉर्ट हो गया बिकॉज उसकी एक तो एज ज़्यादा थी 42 समथिंग, तो उस एज में पॉसिबल नहीं था. All right, and man was very happy. The man was very happy. Oh my god, I'm going to have another child, and I'll be attached with that child. I'll be happy with the child and all. But no, वो दूसरी बार फिर से प्रेग्नेंट हुई. The man got happy, but वो और उसने ना लड़के को बताया, वो वापस से अबॉर्ट हो गई, अबॉर्ट करना पड़ा उसे बिकॉज वो अंदर द बेबी डाई. But this time she didn't tell the man about it. And she decided कि वो जिस बच्ची को उसने किडनैप किया है, she liked the kid because she had all the qualities. She was smart, she was good looking, very good looking, she was clever, she was good at everything. So उस बच्ची ने उस औरत ने, ट्यूटर ने उस बच्ची को प्रेग्नेंट कर दिया एक स्ट्रेंजर के स्पर्म से. डिटेल्स मेंशन नहीं है कि इसको कैसे प्रेग्नेंट किया, बट द गर्ल वॉज अ वर्जिन एंड शी केप्ट टेलिंग द गर्ल दैट oh you are a miracle baby, you are a miracle baby, but she didn't believe it because she knew, she was a smart educated child, she knew कि ऐसा कुछ नहीं होता है, and she knew कि अब इसको किडनैप कर लिया है तो फिर इसी तरीके से किडनैप करके उसको बेसमेंट में रखा था. And she was like ऐसा, sometimes she would be so nice with her and sometimes she would be so bad with her, so toxic, and then somehow she got her pregnant and we all can like assume कि उसको कैसे pregnant किया. And जो sperm था वो एक random stranger का था. Okay, उसको उसने 8 महीने रखा, मतलब 9 महीने रखा, और है ना फेक बेली रखी थी, फेक बेली ऐसे लगा के रखी थी जो उसके हस्बैंड तक तो नहीं पता था. एंड दे यूज्ड टू नॉट हैव सेक्स एट ऑल सो दैट दे कुड अवॉइड इट, मतलब शी कुड अवॉइड इट कि लाइक वो अगर उसका बेली ना दिखे. लेकिन एक बार वो रूम में अकेली थी, उसका हस्बैंड मतलब वो लड़का नहीं था, सॉरी नॉट हस्बैंड, मैन, वो मैन, द मैन वॉज ऑन देयर बट द चाइल्ड वॉज देयर. उस टाइम शी वॉज 10 years old. ओके, ये 10 years बाद का बताते हैं, 10 years old. और देन वो बच्ची ने देख लिया होता है कि शी वॉज नेकेड एंड शी वॉज फ्लैट. आई मीन हाउ कैन शी बी फ्लैट? शी इज सपोज टू हैव अ बेली और समथिंग, राइट? इफ शी इज 8 months pregnant, I guess, I mean obviously, but she felt like she hallucinated or she imagined it, or because she didn't like that person, she didn't like the tutor at all, the child of the man. And now moving forward, 8 महीने तक उसको रखा and she thought कि oh I'll get all the princess treatment all and all, but she didn't get such treatment from the man. Yeah, and this is मतलब she did get all the care but not the affection though. Okay, so उसके बाद क्या हुआ, वो 8 महीने तक रख रही थी. लास्ट में आते आते उसको रियलाइज हुआ कि दिस मैन डजंट लाइक मी एट ऑल, he doesn't love me at all, and even baby हो गया, still the man won't keep her at his house, he won't marry her or anything, he just, yeah, nothing.
सो फिर उसको लड़की पे गुस्सा आने लगा, फिर वो लड़कियों को कभी कभी मारती थी, करती थी, बट स्टिल समहाउ बेबी हुआ. तो बेबी, द नेम ऑफ द बेबी वॉज पॉपी. Poppy, such a cute name. After she gave the birth to that baby, 1 साल तक तो उसकी उसकी जो रियल मम्मी थी उसको ना वो ट्यूटर ब्रेस्ट फीडिंग करने देती थी, और उस मैन के पास लेके नहीं गई होती है, बिकॉज शी वॉन्टेड टू ऐसा शो कि आई डोंट शो, एंड जैसे लेके जाती है तो वो मैन डिडंट शो द अफेक्शन टू हर एट ऑल, ओनली लाइक लव्ड द चाइल्ड, बिकॉज ही थॉट उसका ही बच्चा है, और उसका बच्चा नहीं था, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू गाइज. ओके, एंड देन वो उसको बहुत प्यार करता था, लेकिन वो उस वुमेन को रियलाइज हो गया कि वो उसको नहीं प्यार करेगा कभी, एंड शी स्टार्टेड ट्रीटिंग हर ओन मतलब द गर्ल्स चाइल्ड बैडली. उस लड़की को भी रहने दिया, एंड 1.5 साल तक उसको ऐसे ही ट्रीट किया, 4 साल तक कुछ ऐसे निकल गया, एंड एक दिन उसको खाना देना बंद कर दिया. 1 हफ्ता निकल गया, 10 दिन निकल गया, एंड देन अपेरेंटली शी डाइड इन द बेसमेंट. एंड देन क्या होता है, फिर वो जो छोटी बच्ची हुई थी वो 10 साल बाद 9 साल की हो जाती है. आई मीन वो 1 साल, वो जो उसकी डिसअपियरेंस के बाद 9 साल की हो जाती है, बिकॉज 1 साल तो प्रेगनेंसी का था, राइट. एंड देन जो लड़की की मदर थी, जो वो लड़की किडनैप हो गई थी, उसकी मदर थी, वो एक कैफे में बैठी होती है, वहाँ पे एक मैन आता है, बिकॉज आई डोंट नो, पता नहीं कहाँ से रैंडमली आया, बट ही सॉ दैट पर्सन, एंड वो अंदर आया, वो उसके पास बैठा, आई मीन उसकी टेबल पे नहीं, उसके आसपास वाली टेबल पे, एंड ही स्टार्टेड कॉम्प्लीमेंटिंग हर कि ओ वाओ यू लुक प्रिटी, एंड देन ही न्यू कि ना इस जो ये जो लेडी है इसका कोई हस्बैंड नहीं, बाय द वे उस हस्बैंड का और वाइफ का ब्रेकअप डिवोर्स हो गया था, बिकॉज ऑफ सम रीजन उनकी बेटी मर गई थी, तो they grew apart and they wanted some distance with one another. That man started giving her compliments or something, and then वो दोनों मतलब बातें करते करते बहुत बातें करी, एंड देन दे एक्सचेंज देयर फोन नंबर्स, शी कॉल्ड हिम, दे वेंट ऑन अ डेट, डिनर डेट, एंड देन थर्ड डेट पे हुई तो वो उसके घर गई, दे हैड सेक्स एंड ऑल एट द एज ऑफ 51-55 ऑल्सो शी इज हैविंग फन, दिस इज नाइस. एनीवेज, सो शी सॉ that man's daughter, okay, and she was like, man, she exactly looks like my daughter, damn, that's a coincidence, right? But she thought कि क्या मतलब मैं इमेजिन कर रही हूँ, ऐसा नहीं होगा. फिर वो धीरे धीरे और कनेक्ट हुए, और ज़्यादा इतना बात करने लगे. वो जो बच्ची थी पॉपी के साथ भी इधर उधर घूमने जाती थी. पॉपी स्टार्टेड लविंग दैट पर्सन, जो वो लेडी थी. फिर वो सब एक दूसरे की फैमिली से मिले, मतलब जो उसकी दूसरी बेटी और एक बेटा और उसका एक्स हस्बैंड था और उसकी गर्लफ्रेंड, उन सबसे मिले. एंड देन एवरीवन वाज लाइक, मैन शी लुक्स लाइक पॉपी, सॉरी देयर लॉस्ट daughter or lost sibling, but nobody told her about the child Poppy, okay. And everyone started suspecting, okay, मतलब because obvious suspicions थे कि कितना सिमिलर कैसे हो सकता है. फिर है ना, एक दिन घर में कोई नहीं था उस लड़के के, एंड देन लेडी वाज देयर, द मदर ऑफ द डिसअपियर्ड चाइल्ड, एंड शी वेंट टू द desk room or something office type of room of that men's room, okay. And then she found pieces of the paper जो कि उसकी lost disappeared child के थे. of course हर तरफ न्यूज़ में था, सब कुछ जगह पे था. and she saw कि man, she knew this guy knows about her, and she was shocked about it कि how I just don't understand. and then she also realized that जो पॉपी की जो मदर थी, मतलब पहले ही रियलाइज़ हुआ था कि पॉपी की जो मदर थी वो उसकी ट्यूटर थी, एक्स ट्यूटर. पहले शी डिडंट कनेक्ट, उसको नहीं पता था कि ट्यूटर ने ये सब किया है इतना 10 सालों तक, ठीक है. एंड देन शी वाज लाइक, ये तो ट्यूटर थी, इतना बड़ा कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है. एंड वो पीसेस उसको बहुत बाद में मिले थे. फिर क्या था कि वो ना उस इंसान की इन्वेस्टिगेशन करने लगी. पता पड़ा कि वो 6 सालों से गायब है. 6 सालों से वो खुद डिसअपियर्ड है. न्यूज़पेपर में कोई न्यूज़ नहीं है किसी भी चीज़ को लेके कि वो कहाँ है, क्या है, किधर है. एंड शी वॉज शॉक्ड अबाउट इट कि कैसा कोइंसिडेंस है कि इस बच्चे की जो मम्मी है वो मेरी बेटी की ट्यूटर हुआ करती थी, एंड वो अभी गायब है. एंड देन अब आता है रियल ट्विस्ट. तो मैंने सारा बता दिया, अब आएगा कुछ इंटरेस्टिंग सा, विच आई टेल यू गाइज. तो अब क्रिसमस का टाइम आता है, एंड उसको बहुत ज़्यादा डाउट था. शी वॉज वेरी डाउटफुल अबाउट दिस गाय, एंड शी डिडंट ट्रस्ट हिम एनी मोर एट ऑल. बट स्टिल शी डिड गो उसके घर पे, एंड टर्न्स आउट कि वो उसको बहुत अच्छा कुछ गिफ्ट देना चाहता है. बट शी वॉज सो स्कैर्ड, एंड दैट गाय न्यू कि समथिंग, शी नोज नाउ, एंड शी नोज, एंड द गाय वॉज गोइंग टू एक्चुअली रिवील इट, ओके. फिर वो लड़का ना उसको रिवील करता है, मतलब क्या करता है, एक लेटर देता है. उस लेटर में लिखा होता है
कुछ लिखा हुआ होता है कि प्लीज़ चेक दिस वीडियो एंड ऑल, बट आई डिडंट वांट टू डू दिस एंड आई नो कि दैट यू आर डाउटिंग मी नाउ कि हाउ कैन दिस बी सो मच, ऐसा इतना कॉमन एंड देयर इज़ अ वीडियो, गो टू माई रूम, क्लिक ऑन माई लैपटॉप एंड यू कैन सी अ वीडियो देयर एंड शी प्लेड द वीडियो. वीडियो में उस मैम ने पूरी कहानी बताई कि ऐसा था कि ये ना बेटी की जो ट्यूटर थी उन्होंने ही तुम्हारी बेटी को किडनैप किया था एंड उसको बेसमेंट में रखा था 4 साल तक एंड आई डिडंट इवन नो. एंड 4 साल तक नहीं, मतलब वो 1.5-2 साल में तो वो लड़की मर गई थी. लेकिन मुझे 4 साल बाद पता चला, जब मेरी बेटी हो गई मुझे 4 साल बाद पता चला कि आई एम नॉट एक्चुअली हर फादर एंड नाइदर शी इज़ द चाइल्ड्स मदर. उसने गुस्से में बोला था वो लड़की को, वो जब लड़की को छोड़ के जा रही थी तब उसने गुस्से में बोला था कि रखो तुम अपनी बेटी को, और पता है तुम्हें क्या कि तुम्हारी बेटी है भी नहीं, ना ही मेरी बेटी ना ही तुम्हारी बेटी. मैंने उस लड़की को किडनैप करा एंड पहले तो लड़के ने सोचा कि ये पागल है, ये फालतू बातें कर रही है, बट उसने चेयर उठा के उस पर फेंक दी और फिर ना कुछ हुआ, कुछ एक्सीडेंट हुआ एंड उसकी वजह से वो लड़की मरी गई. आई मीन शी डिजर्व्ड इट, शी एक्चुअली डिजर्व्ड इट. तो लड़के को 4 साल बाद ही पता पड़ गया था. ओके और वो जो बाय द वे स्टीलिंग हुई थी, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना कि उसके सामान मिले थे, तो वो एक्चुअली वो ट्यूटर जो थी 4 साल बाद वो वापस से चोरी करने गई थी उनके उधर रूम में, मतलब उनके घर पे, और 4 साल बाद सामान चोरी करा और अपने पास रखा था. सीरियसली शी डिड दैट बिकॉज ताकि सब सोचे कि वो लड़की भाग के चली गई, बिकॉज वो लड़की मर गई थी ना. फिर उसके बाद क्या हुआ कि ना उस लड़के ने, जो मैन था, जो पॉपी के फादर, तो उस लेडी को मार दिया, ट्यूटर को. एंड लाइक नॉट इंसिडेंटली को, मतलब जानकर नहीं मारा, इंटेंशन नहीं था, बट हो गया. एंड देन ही बरीड हर एक गार्डन में, उसके पास में ही, उसके घर के पास में. एंड द डॉटर नेवर न्यू अबाउट दिस एंड उसके शी एंड देन मैन वाज लाइक, दैट पर्सन वाज लाइक अब 6 साल निकल रहे एंड आई स्टिल फील गिल्टी अबाउट इट, इवन दो शी इज़ नॉट माई चाइल्ड बट स्टिल शी फील्स लाइक माई चाइल्ड ओनली. एंड देन वो लड़के ने स्ट्रैटेजी पूरी प्लान करी और फिर ना सब कुछ मिल गया था, क्योंकि वो उसकी बॉडी भी मिल गई थी और वो बैग भी मिल गया था. तो ही डिसाइडेड कि अब वो उसको रिवील भी करे. तो वो उसके पास जाने लगा, उससे बात करने लगा. इनिशियली ही ओनली वांटेड टू बी द फ्रेंड ऑफ दैट मदर, ओके, बट धीरे धीरे दे बोथ स्टार्टेड लाइकिंग ईच अदर, लविंग ईच अदर, दे बोथ स्टार्टेड हैविंग फिजिकल इंटीमेसी विथ वन अनदर एंड ऑल. सो उसकी वजह से वो उसे छोड़ नहीं पाया, बट देन ही रियलाइज दैट इट वॉज टू लेट नाउ एंड ही needs to reveal the information to her. He needs to reveal the information. फिर वो वीडियो में दिखाता है, वो कहता है मैं जा रहा हूँ, मैं छोड़ रहा हूँ पॉपी को तुम्हारे पास हमेशा के लिए, एंड आई नो यू विल लव हर लाइक योर ओन डॉटर. एंड वो चला जाता है एंड देन एक्चुअली ही किल्ड हिमसेल्फ. आई नो राइट, इट वॉज सो सैड दैट ही किल्ड हिमसेल्फ. एंड इट वॉज ऑल्सो वेरी स्वीट दैट ही लव्ड पॉपी लाइक हर ओन चाइल्ड for 10 years, and for 6 years he didn't even know that Poppy was not his child. एंड पता है क्या होता है इसमें कि एक और साइड चीज़ें बता रही हूँ. जो उनकी अदर डॉटर होती है उसको ना वो अपनी मदर को बिल्कुल हेट करती थी, बिकॉज उसकी मम्मी उसे हमेशा कंपेयर किया करती थी. शी वाज लाइक ये बचपन में भी जब शी वाज अलाइव. एंड देन उसकी मम्मी और एंड उसका बॉयफ्रेंड जो बना था वो जो उसकी छोटी बहन थी जो मर गई थी उसी का ही एक्स बॉयफ्रेंड था. फिर उसकी मम्मी उसको फॉरगिवनेस के लिए बोलती है, कहती है आई एम रियली सॉरी, दिस हैपेंड, दैट हैपेंड, आई डिड दैट, everything. And then everything went fine, and then she started treating Poppy as her own child because she was a child, even though grandma थी. And Poppy को भी उसके पापा ने सब कुछ बता दिया था. And then they started living together, and she was again so happy. She was so depressed for 10 years, and then again she was so happy because she had a child to keep with her, to take care of her, and to start everything with new and fresh and everything, right? And then ऑल्सो ये पूरा स्टोरी खत्म हो गया. एक साइड स्टोरी छोटी सी कि वो जो पॉपी वो जो डिसअपियर चाइल्ड होती है उसके पास क्या बुक्स हुआ करती थी पढ़ने के लिए, और क्योंकि वो जो थी वो लेडी लाया करती थी, उसको सब चीज़ें दिया करती थी, उसकी फेवरेट चीज़ें, उसको खाना अच्छा, सब कुछ, न्यूट्रिएंट्स, गिफ्ट्स और सब कुछ दिया करती थी, बहुत सारी चीज़ें दिया करती थी. तो वो उसको बुक्स भी देती थी, पेन पेंसिल भी देती थी. तो उसने एक पेपर में एक नोट लिखा था कि हाय आई एम एली, उसका जो नाम था एली, एंड दिस इज़ द letter to my sister, my family, to my daughter, to my ex-boyfriend, tell everyone that I love them and I'm very sorry this happened. And it was such a emotional letter. It was so nice, and I feel like if you guys read it you will actually like it. I love the book so much, and I'm so sorry for my bad narrating, but if you watched it,
थैंक यू सो मच, बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो में सून।